So, Namaskaram all. Now we are starting with chapter number 5, time and value of supply. In this unit, particularly, we are having unit 1, time of supply, unit 2, value of supply. We are particularly focusing on section here, not a unit number. So you should think like we are starting with section 15. Okay. अपना section जो चल रहा है, that is section 15. This is what you should keep in mind. Till now, we have already covered so many sections like section 1. Section 1 talks about scope and extent of GST law, that is section 1. Section 2 talks about definition. Section 3 to section 6 talks about power of GST authorities and GST authorities. So this is section 3 to 6. Section 7 talks about supply, definition of supply. What do you mean by supply? What are the inclusion and exclusions of supply? So that is also done. Section 8 talks about mixed supply and composite supply. Section 9 talks about levy charging section. Okay. Section 10 talks about composition levy and presumptive scheme we have discussed there, section 10. Section 11 talks about your exemptions, and the biggest chapter that we have finished just now is exemption with notification number 12/2013, 12/2017. So that is exemption, section 11. Section 12, 13 and 14 talks about time of supply, TOS, time of supply. But I'm keeping that chapter pending and I'm moving to section 15. So you should know on which section we are, just to give you a track that, okay, we have done the law up to section 11. Now we are focusing on section 15, keeping section 12, 13, 14 for the next lecture. Because this is a small and cute chapter and it's very important at the same time. So you need to know value of supply. So why do we understand value of supply? Value of supply की जरूरत ही क्या है? Okay. So because to compute GST, you need to have two factors. You need to have two factors because GST is the ad valorem tax. In Latin phrase, we call it ad valorem tax. Ad valorem tax मतलब tax based on value. GST के rates होते हैं 15%, 18%, 12%, 5%. वो rate apply करने के लिए you need to have value. So to compute GST, you need to know two things, two factors. It's always made with two factors, value and a rate of tax. Rate of tax we already know, and even if you don't know the rate of tax, that's fine. They will provide you rate of tax in examination. You need to remember only composition rates primarily. That should be there in your mind. So rate of tax, service industry के लिए rate of tax is ideally 18%. 99% time it is 18%. आपको 18% याद रखना पड़ेगा service industry के लिए. Now the factor is value. We already know rate of tax. Now we are talking about value factor, and valuation is done as per section 15. And section 15 says, sir, if you wanted to have proper valuation or the ideal valuation in GST law, then you should know three subsections of section 15. Section 15 is having three, actually it is having four subsections, but I'm talking about three primary section. Okay. So section 15 subsection 1, section 15 subsection 2, and section 15 subsection 3. 4 we will talk later on. Section 15 subsection 4 we will talk later on. Right now we are focusing on section 15 subsection 1. Section 15 subsection 1 says the valuation under the assessable value under GST is a transaction value. आपने जिस प्राइस पे ट्रांजैक्शन किया है वो वैल्यू हम फाइनल मान लेंगे. इसका एक एग्जांपल मैंने आपको बहुत पहले भी दिया था कि अगर मॉल में आप जाते हो और कोई प्रोडक्ट अगर 10,000 का है, उसका एमआरपी जो है वो 10,000 है, लेकिन आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे वो मिल रहा है और डिस्काउंटेड प्राइस पे यू आर सपोज टू पे ओनली 80% ऑफ चालू है. अभी अमेजॉन प्राइम पे भी आप देखोगे तो 80% ऑफ चालू है. तो 10,000 का प्रोडक्ट 80% ऑफ, यू आर गोइंग टू पे ओनली 2,000. तो व्हाट डू यू थिंक जीएसटी क्या वैल्यू पे लगेगा? 10,000 पे लगेगा कि 2,000 पे लगेगा? जल्दी बोलो. एमआरपी ऑफ द प्रोडक्ट इज 10,000 बट दिस प्रोडक्ट इज रनिंग ऑन 80% डिस्काउंट और आज के तारीख में उसका प्राइस जो आपको पे करना है दैट इज ओनली 2,000.
तो व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगेगा जीएसटी कितने पे लगेगा, 10,000 या 2,000? जल्दी बोलो। प्लीज रिप्लाई। 10,000 की गुड्स है, मैं आपको बता रहा हूं, और 80% ऑफ पे चालू है, और आज उसका वैल्यू 2,000 पे। आपको क्या लग रहा है? मैं आपका ओपिनियन पूछ रहा हूं, आप लोगों को लॉ नहीं पता होगा। आई एम आस्किंग योर ओपिनियन। या तो शॉपिंग तो आप करते ही रहोगे ना जिंदगी में। 10,000 पे आप टैक्स भरना चाहोगे कि 2,000 पे टैक्स भरना चाहोगे? लेट मी नो। यस, विजय, गौरांग, प्राची, योर आंसर इज राइट, 2,000। तो व्हाट इज 2,000 एंड व्हाट इज 10,000? 10,000 इज एमआरपी, स्टैंडर्ड प्राइस, लिस्ट प्राइस, उसके दुनिया भर के नाम है। बट व्हाट इज एक्चुअली अ ट्रांजैक्शन वैल्यू? ट्रांजैक्शन वैल्यू कितना है सर? ट्रांजैक्शन वैल्यू तो 2,000 है, बिकॉज यू आर डूइंग ट्रांजैक्शन एट 2,000। So what do you mean by transaction value, sir? A transaction value is the value which means price actually paid or payable. Price actually paid or payable, इसको transaction value बोलते हैं। Now I would like to give you one more example. अब पकड़ लो नया आईफोन आ रहा है, ठीक है ना, न्यू आईफोन का प्राइस है कुछ 80,000 रुपीज, ठीक है ना, but the iPhone company is saying, okay, you can exchange your old iPhone for this new iPhone, और अगर आपने exchange किया तो we will give you this new iPhone at 70,000। जरा समझो मैंने क्या बताया आप लोगों को। ओल्ड आईफोन आप दे दो हमें, और न्यू आईफोन आप 70,000 पे ले लो। वैसे तो एमआरपी अगर आप डायरेक्टली दुकान से लेने जाओगे तो 80,000 का है, बट इन एक्सचेंज स्कीम आपने अगर ओल्ड आईफोन हमें दे दिया और न्यू आईफोन आपने लिया तो आपको 70,000 में मिलेगा। तो ये सेकेंड सिनेरियो में, फर्स्ट सिनेरियो में तो ऑब्वियसली अगर आपने शॉप में से लिया तो 80,000 के ऊपर ही जीएसटी लगेगा, देयर इज नो डिस्प्यूट अबाउट इट। बट सेकेंड सिनेरियो में 70,000 पे जीएसटी लगना चाहिए कि 80,000 पे लगना चाहिए, जहां पे एक्सचेंज करके आपने आईफोन लिया हुआ है? जल्दी बोलो। प्लीज गिव मी योर ओपिनियन फटाफट। तो आप बोल रहे हो 70,000, जबकि आंसर 70,000 नहीं है, आंसर 80,000 है। सर अभी आंसर 80,000 क्यों है? बिकॉज बेटा व्हेन आई सेड प्राइस एक्चुअली पेड, दिस प्राइस नीड नॉट टू बी मॉनेटरी, दिस प्राइस कैन बी monetary or non-monetary. Okay, they are not giving you discount of 10,000, that's the exchange value of your old phone. Okay, and you are paying in two different consideration. Money you paid 70,000, phone you have given them 10,000. So the price actually paid by you to the vendor is actually 80,000. Do you understand this? It's not 70,000. 70,000 cash you paid, but you have given your old mobile, and the exchange value of old mobile was 10,000. So technically you have paid actually 80,000. Are you getting this? Hello? Are you getting this? Price actually paid wording. Price can be, this value can be monetary or non-monetary. Please understand this. Okay. Now let's go ahead. If I tell you whatever price you pay on that GST is applicable. So in India, particularly in India, where tax manipulation is at its peak, आपको क्या लगता है जब लोगों को टैक्स मैनिपुलेशन करना होगा तो वो वैल्यू इंक्रीज करके दिखाएंगे कि वैल्यू डिक्रीज करके दिखाएंगे? क्या लग रहा है आप लोगों को? उनको अगर टैक्स मैनिपुलेशन करना है तो वैल्यू इंक्रीज करके दिखाएंगे या डिक्रीज करके दिखाएंगे? जल्दी बोलो। वैल्यू तो डिक्रीज करके दिखाएंगे। क्यों सर? वैल्यू डिक्रीज करेंगे, रेट तो हम चेंज नहीं कर सकते, रेट तो कांस्टेंट रहेंगे, तो वैल्यू कम कर देंगे तो टैक्स कम हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू का और टैक्स का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। मोर वैल्यू हायर द टैक्स, लोअर वैल्यू लोअर द टैक्स, हायर द वैल्यू हायर द टैक्स, लोअर द वैल्यू लोअर द टैक्स। तो वैल्यू का एंड जीएसटी का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, एंड देयरफॉर टू इवेट टैक्स पीपल वुड शो लोअर वैल्यू। सर लोअर वैल्यू शो करते, लोअर वैल्यू पे ट्रांजैक्शन नहीं होते, ट्रांजैक्शन फेयर प्राइस पे ही होते हैं।
just to save tax shopkeeper is not going to show give you a goods at less price. तो आप समझो तो उन्होंने क्या बोला कि सर ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ पे करने की बात करते हैं लोग यहाँ पे, इसलिए उन्होंने कंडीशंस क्या डाल दिए कि अगर आपकी वैल्यू आप जो शो कर रहे हो अगर वो वैल्यू अगर हमें देखनी है तो आपको दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। पहला कंडीशन है कि प्राइस शुड बी द सोल कंसिडरेशन, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, ठीक है ना, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। इसका मैंने एग्जांपल अभी अभी आपको दे दिया कि यहाँ पे देखो प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं था क्योंकि आपने मोबाइल के साथ 70,000 दिया था, पहले वाले प्राइस में क्या था 2,000 के साथ आपने कुछ नहीं दिया, you just paid 2,000, तो यहाँ पे प्राइस was the sole consideration। लेकिन सेकेंड एग्जांपल में प्राइस was not a sole consideration, apart from that you have given something extra, और जो समथिंग एक्स्ट्रा दे दिया उसका वैल्यू मैंने इंक्लूड कर दिया। तो पहला कंडीशन है प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, मतलब जो आपने पे किया है वही कंसिडरेशन है, उसके अलावा आपने कुछ नहीं दिया, दैट्स अ फुल एंड फाइनल कंसिडरेशन। एंड सेकेंड कंडीशन है यहाँ पे, सेकेंड कंडीशन है एंड वाली, सेकेंड कंडीशन है कि जो सप्लायर एंड रेसिपिएंट होते हैं, सप्लायर एंड रेसिपिएंट होते हैं आर अनरिलेटेड पार्टीज, मतलब वो अनरिलेटेड है। सर अनरिलेटेड क्यों? क्योंकि अगर रिलेटेड होंगे, आपको क्या लगता है रिलेटिव्स को आप फेयर प्राइस पे गुड्स सेल करते हो क्या? अगर आप अपने डॉटर के साथ ट्रांजैक्शन करोगे, अगर आप अपनी वाइफ के साथ ट्रांजैक्शन करोगे, अपने हस्बैंड के साथ ट्रांजैक्शन करोगे, ठीक है ना, तो क्या लग रहा है आप लोगों को फेयर प्राइस पे होगा कि अनफेयर प्राइस पे होगा? रिलेटेड पार्टी से जब ट्रांजैक्शन होता है तो फेयर प्राइस पे होता है क्या? जल्दी बोलो। इफ यू सेल गुड्स एंड कमोडिटीज एंड सर्विसेज टू योर रिलेटेड पार्टी तो फेयर प्राइस पे नहीं होता, तो गवर्नमेंट बोलता है नहीं नहीं ये रिलेटेड वगैरह की पार्टी जब आते हैं ना तो हम ना ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, क्या करने के लिए फिर आपको जाना पड़ेगा सेक्शन 15 सबसेक्शन 4 में, वहां से वैल्यूएशन रूल्स में जाना पड़ता है, वैल्यूएशन रूल्स में जाना पड़ता है, दैट वी विल डिस्कस इन फेज 2। फेज 1 में हमें ये 3 सेक्शन डिस्कस करने हैं, तो प्लीज फोकस ऑन दिस 3 सेक्शन। अच्छा, एक जमाने में की बात कर रहा हूं, अभी ऐसा नहीं होता लेकिन एक जमाने की मैं आपको बात कर रहा हूं। एक जमाने में अपने इंडिया में वैट करके लॉ हुआ करता था, वैट। और वैट जो था, जो आज भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट और लिकर पे है, लेकिन जो वैट एक जमाने में था तो वो खाली गुड्स की वैल्यू पे लगता था, ठीक है ना। और ये उस टाइम की बात बता रहा हूं जहां पे सर्विस टैक्स नहीं था, तो आपको अज्यूम करना है कि सर्विस टैक्स नहीं है, खाली गुड्स का वैल्यू जो होगा उसके ऊपर टैक्स लगता है। अब समझो मैंने ये बॉटल जो है मुझे परचेस करनी है, ठीक है ना, ये बॉटल मैंने परचेस करनी है शॉप से, तो बॉटल तो गुड्स हो गई, तो उसके ऊपर वैट लगना है। तो उस टाइम पे मैनिपुलेशन करने के लिए, वैट के टाइम पे मैनिपुलेशन करने के लिए ये लोग बिल कैसे बनाते थे, इफ दिस इज माय इनवॉइस फॉर एनी प्रोडक्ट, तो यहाँ पे बोलते थे वैल्यू ऑफ गुड्स, वैल्यू ऑफ गुड्स। ऋतिक अपना माइक बंद करो, वैल्यू ऑफ गुड्स, ऋतिक माइक बंद करना है आपको। वैल्यू ऑफ गुड्स जो है वो पकड़ लो मैंने 1000 रख दिया। फिर उसमें ना मैनिपुलेशन करने के लिए हम क्या करते थे पता है, अलग से कुछ सर्विसेज शो करते थे, सर्विसेज, ठीक है ना, जैसे डिजाइनिंग चार्जेस, पैकिंग चार्जेस, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, आप समझ रहे हो क्या, ऐसे इंस्टॉलेशन चार्ज, कुछ भी, ठीक है ना, एनी चार्जेस। अब सर्विस कंपोनेंट के ऊपर तभी टैक्स नहीं लगता था उस जमाने में, 1994 की पहले की बात कर रहा हूं, आप समझो, ठीक है ना। तो सर्विस कंपोनेंट के ऊपर टैक्स नहीं लगता था, टैक्स खाली गुड्स कंपोनेंट पे लगता था। लेकिन क्या आपको कभी भी शॉप में आप गए और कोई प्रोडक्ट अगर परचेस किया, जैसे कोई ये कीबोर्ड परचेस किया, तो कभी आपने ऐसा चार्जेस दिया है क्या, कीबोर्ड का डिजाइनिंग चार्जेस अलग से, पैकिंग चार्जेस अलग से, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, ऑर्डिनरीली डू यू पे दिस सेपरेटली, कि सब कुछ इंक्लूसिव होता है वैल्यू में? जल्दी बोलो। ये अलग अलग पकड़ लो, 200 रुपीज, 300 रुपीज, 400 रुपीज, 500 रुपीज, ये अलग अलग चार्ज होता है कि वैल्यू में ही इंक्लूड होता है? अगर आपने मोबाइल लिया तो मोबाइल की वैल्यू में सब कुछ ऑलरेडी इंक्लूड होता है कि अलग अलग चार्ज करते हो? जल्दी बोलो। पैकिंग चार्जेस, डिजाइनिंग चार्जेस, स्पेशल पैकिंग चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, जब आप मोबाइल परचेस करते हो जो आपको इनवॉइस मिलता है उसमें ऐसा बाइफरकेशन होता है कि सब कुछ वैल्यू ऑफ गुड्स में ही होता है, इंक्लूडेड होता है। लेकिन ये मैनिपुलेशन पॉसिबल था तभी, ठीक है ना। लेकिन ये मैनिपुलेशन अभी ना हो करके लॉ ने क्या कर दिया, लॉ ने सेक्शन 15, अभी इसमें स्कोप नहीं देना है ना लॉ ने, ठीक है ना, तो 15 सबसेक्शन 2 बनाया। सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 बोलता है
कि आपके ट्रांजैक्शन वैल्यू में से अगर आपने ऐसा कुछ अलग से करके दिखाया होगा तो हम उन चीजों को इंक्लूड कर देंगे, वी विल इंक्लूड दोस थिंग्स, ठीक है ना। तो ये लॉजिक मैंने आपको बता दिया 15 सबसेक्शन 2 का। 15 सबसेक्शन 2 का मैंने लॉजिक आपको बता दिया कि सुनो 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 कि यहाँ पे हमें इंक्लूजन्स पढ़ने हैं, इंक्लूजन्स पढ़ने, जरा जरा ध्यान दो। और इंक्लूजन जो है वो 5 इंक्लूजन्स पढ़ेंगे हम 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए, ठीक है। 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी, 15 सबसेक्शन 3 क्लॉज सी, 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज डी, 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज ई। सो देयर आर 5 क्लॉजेस जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे जाके, लेकिन आप जरा समझने का ट्राई करो। इंक्लूड ओनली व्हेन, इंक्लूड ओनली व्हेन, जो भी हम पढ़ेंगे यहाँ पे, इंक्लूड ओनली व्हेन नॉट ऑलरेडी इंक्लूडेड। इंक्लूड ओनली व्हेन नॉट ऑलरेडी इंक्लूडेड, मतलब इंक्लूजन्स आपके तभी लगेंगे जब ऑलरेडी उन्होंने इंक्लूड नहीं किए, उन्होंने सेपरेटली चार्ज किया तो आप इंक्लूड करो। कभी कभी एग्जाम के क्वेश्चन में क्या होता है, दे विल गिव यू डेटा ऑफ दिस आइटम्स और बोलेंगे ये दिस इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ गुड्स। तो अगर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ गुड्स होगा तो अलग से जाके थोड़ी हम पागल थोड़ी ना कि डबल जाके चार्ज करेंगे। लेकिन क्लैरिफिकेशन मुझे देना था कि हाँ, इंक्लूड ओनली व्हेन नॉट ऑलरेडी इंक्लूडेड। अब मुझे जो बात करनी है ज्यादा, वो बात करनी है सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 की। सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 क्या करता है? सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 एक्सक्लूजन्स की बात करता है। एक्सक्लूजन्स की वैल्यू में क्या नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो एक्सक्लूजन है वो है डिस्काउंट, कि वैल्यू में डिस्काउंट नहीं होना चाहिए। अच्छा, डिस्काउंट दो टाइप का होता है, याद रखो। यहाँ पे डिस्काउंट दो टाइप का होगा। डिस्काउंट विल बी ऑफ टू टाइप, डिस्काउंट ऑफ सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए and discount of section 15 subsection 3 clause b. So yeah, here we are having two types of discount, 15 subsection 3 clause a, 15 subsection 3 clause b. ये दो टाइप का डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिलेगा। और ये दो टाइप के डिस्काउंट में ये क्या डिफरेंस है? दो टाइप के डिस्काउंट में ये है बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, और ये है आफ्टर द सप्लाई, ठीक है ना। तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई मतलब आप शॉप में जाते हो, शॉपकीपर आपको ऑन द स्पॉट डिस्काउंट दे देता है, ऑन द स्पॉट डिस्काउंट देता है, बोलता है चलो ठीक है 10,000 की गुड्स है ना, बार्गेनिंग करके आपने 7,000 में ले लिया, तो 7,000 के ऊपर जीएसटी लगेगा। बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई जो डिस्काउंट दिया जाता है, हमारे यहाँ पे कंडीशन एक ही है कि ये जो डिस्काउंट है, इट शुड बी रिफ्लेक्ट इन द इनवॉइस, ठीक है ना। इट शुड रिफ्लेक्ट इन द इनवॉइस, इट शुड बी शोन इन द इनवॉइस। आपने रिफ्लेक्ट कर दिया तो वी विल अलाउ टू बी डिडक्टेड, तो ये डिस्काउंट माइनस हो जाएगा। और इतना ही कंडीशन है कि आप इनवॉइस डिस्काउंट को बोलना ही नहीं है, डिस्काउंट बिल बनने के बाद डिस्काउंट की बात नहीं करनी है, बिल प्रिंट होने से पहले डिस्काउंट की बात करनी है। और डिस्काउंट जो आपने दे दिया है वो आपके बिल में दिखा होना चाहिए, तभी तो उसको जेन्युइन माना जाएगा। अगर आप बोलते हो कि नहीं मैंने बिल 10,000 का बनाया और उसके बाद 7,000 का डिस्काउंट दे दिया, तो वो कौन अग्री करेगा? यू शुड हैव सम डॉक्यूमेंट्स evidencing that you have given the discount in reality। तो ये यहाँ पे बात आपको करनी पड़ेगी। आफ्टर सप्लाई में चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। अपनी गुड्स का सप्लाई कर दिया है, गुड्स का सप्लाई होने के बाद आगे जाके आपको पता चलता है कि मुझे इस पर्टिकुलर पर्सन को डिस्काउंट देना चाहिए। द रीजन कैन बी डिफरेंट, रीजन कैन बी डिफरेंट। एक तो प्राइजेस ऑफ द कमोडिटी ओवरऑल मार्केट में गिर गई,
या कोविड-19 की वजह से सिचुएशन खराब हो गई, या तो उसने एक पर्टिकुलर टर्नओवर अचीव कर दिया। जैसे बहुत सारे सप्लायर क्या करते हैं, बहुत सारे ट्रेडर क्या करते हैं, टॉप फाइव हर साल क्या होता है, पूरे साल के एंड में टॉप फाइव कस्टमर निकालते हैं, और टॉप फाइव कस्टमर्स को 5% का या 10% का वैल्यू बैक देते थे, डिस्काउंट दे देते, ठीक है ना, या क्वांटिटी डिस्काउंट दे देते। क्वांटिटी डिस्काउंट क्या होता है कि सर आप एक मतलब 10,000 की क्वांटिटी हमारे यहाँ से परचेस करोगे तो आपको एक 8% का डिस्काउंट मिलेगा, ऐसा कोई स्कीम होता है, ठीक है ना। अब ईयर की बिगिनिंग में तो हमें नहीं पता कि 10,000 की क्वांटिटी अचीव होगी या नहीं होगी, विल आई बिकम टॉप 5 कस्टमर्स और नॉट, ये हमें ईयर स्टार्टिंग में नहीं पता, बाद में पता होता है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, यूजुअली आफ्टर सप्लाई, लिसन टू मी, यूजुअली आफ्टर सप्लाई डिस्काउंट जो दिया जाता है उसको डिडक्ट नहीं करने का, उसको वैल्यू में से डिडक्ट नहीं करने का, क्योंकि आफ्टर सप्लाई दिया गया, बिल पहले बन चुका है, सप्लाई हो चुका है प्रॉपर वैल्यू पे, ठीक है ना, डिस्काउंट बाद में दिया जाता है तो उसको माइनस नहीं करो, यू शुड नॉट सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम द ट्रांजैक्शन वैल्यू। बट if you can comply with the three conditions, if you can comply with the three conditions, तो आपका आफ्टर सप्लाई डिस्काउंट भी जो होगा वो भी हम माइनस करने के लिए अलाउ कर देंगे। सर यहाँ पे आफ्टर सप्लाई डिस्काउंट में क्या क्या आता है, पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे आता है कि जो डिस्काउंट है वो अग्रीड टर्म पे होना चाहिए, अग्रीमेंट होना चाहिए उस डिस्काउंट का, मतलब इसको सडनली आप उठ के आओगे और डिस्काउंट दे दोगे तो नहीं चलेगा, सडनली दिवाली बम्पर ऑफर निकालोगे तो नहीं चलेगा, सडनली आपने मुझे अनाउंस किया कि आप मेरे टॉप 5 कस्टमर में आते हो और आपको इतना इतना, सडन डिस्काउंट्स आर नॉट एक्सेप्टेबल इन दिस सेक्शन। सडन डिस्काउंट को आपको सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, ये पहला रूल नंबर 1, ये आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ, मैंने जब सप्लाई किया था, जब ये बिल बनाया था, तो बिल के नीचे लिखा हुआ है कि आप हमारे टॉप 5 कस्टमर बनोगे तो आपको हम इतना इतना डिस्काउंट दोगे, ठीक है ना, या जो अग्रीमेंट हमने साइन किया है, जो परचेस ऑर्डर हमारा साइन है, या तो कोई स्कीम आपने मुझे पहले ही बता दी है, सप्लाई के पहले ही अग्रीमेंट पहले ही हो गया था हमारा कि इतना इतना डिस्काउंट मिलेगा, ये पहले से अगर इंटीमेटेड होना चाहिए, ये तो पहला कंडीशन हो गया। सेकेंड कंडीशन ये जो इसका इनवॉइस वॉइस लिंकिंग होना जरूरी है, जो डिस्काउंट दिया आपने, क्योंकि ये आफ्टर सप्लाई दिया जा रहा है तो इसका इनवॉइस वाइज लिंकिंग होना पॉसिबिलिटी होना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे रैंडमली डिस्काउंट किसी भी वैल्यू के सामने माइनस नहीं कर सकते, आपको हमें बताना पड़ेगा इनवॉइस नंबर 10 के सामने इसका कितना डिस्काउंट है, इनवॉइस नंबर 24 के सामने इतना डिस्काउंट है, तो इनवॉइस वाइज लिंकिंग होना बहुत जरूरी है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने सप्लाई 1 लाख रुपए पे किया था और 1 लाख रुपए पे आपने अगर जीएसटी चार्ज किया होगा 18,000 का, ठीक है ना, तो 1,18,000 आपने 1,18,000 you would have charged earlier, अभी 1,18,000 का आप डिस्काउंट देके इसको बोल रहे हो कि चलो ठीक है सर आपको डिस्काउंट दे दिया 50% ऑफ, तो अभी तो ये बंदा खाली 50,000 ही आपको पे करने वाला है आफ्टर डिस्काउंट, तो 50,000 पे जीएसटी होना तो चाहिए था 9,000 का, और 59,000 यू आर गोइंग टू गेट नाउ। अब बात क्या हो रही है कि आपने जो ओरिजिनल इनवॉइस इश्यू किया था वो 1 लाख रुपीस का था, एंड ही मस्ट हैव क्लेम आईटीसी ऑफ 18,000। ये जरा पॉइंट समझने का ट्राई करो, जो आपका बायर है उसने आईटीसी जो लिया होगा वो 18,000 का लिया होगा, वेयर एज हमने 18,000 का आईटीसी थोड़ी ना क्या देना है, 18,000 का आईटीसी दे देंगे तो हम तो लॉस में चले जाएंगे, क्योंकि हमने तो गवर्नमेंट को टैक्स भरना है अभी ओनली 9,000 का। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, अच्छा ऐसे केस में काम करो, ऐसे केस में काम करो, ये जो पॉइंट नंबर 3 है वो आप लिख दो, कंडीशन रिवर्सल ऑफ आईटीसी, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पोस्ट डिस्काउंट, रिवर्सल ऑफ आईटीसी ये होना चाहिए, रिवर्सल ऑफ आईटीसी होना चाहिए फ्रॉम दी बायर साइड, जो आपका बायर है, जो आपका रेसिपिएंट है, उसने अपने आईटीसी को रिवर्स करना चाहिए। दिस इज व्हाट इज रिटन, आप में अपने मेरे को हैंड रिटन नोट्स में से थोड़ा पढ़ाने दो, एंड देन वी विल गो एंड डिस्कस द लॉ इन डिटेल। सेक्शन 15 वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सीजीएसटी एक्ट, आप सीजीएसटी एक्ट का ये जो वैल्यूएशन रूल है ये आईजीएसटी को भी एप्लीकेबल है, यूटीजीएसटी को भी एप्लीकेबल है, सीजीएसटी एजीएसटी के तो है ही है, ठीक है ना, और यहाँ पे वैल्यू ऑफ गुड्स और वैल्यू ऑफ सर्विस दोनों हो रहा है, ठीक है, दैट मींस पूरे जीएसटी रिजिम में वैल्यूएशन का एक लौता सेक्शन है, ओनली वन सेक्शन फॉर होल जीएसटी रिजिम वैल्यूएशन, एंड दैट इज सेक्शन 15, वैल्यू मतलब 15, इतना याद रखो आप माइंड में, ओके। सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 वैल्यू मींस ट्रांजैक्शन वैल्यू, ट्रांजैक्शन वैल्यू को मैं शॉर्टकट में टीवी लिखेगा, टीवी मींस ट्रांजैक्शन वैल्यू। So what do you mean by transaction value? Transaction value means price actually paid or payable. Price actually paid or payable. Okay.
So what are the condition? First condition, buyer and seller, supplier and recipient are not related. Supplier and recipient are not related. And second condition is price is the sole consideration. Whatever price you are showing in the invoice, that's the only consideration. We are not paying anything beyond that particular amount. So what if we pay something beyond that, or what if we are not related? Then the transaction value cannot be accepted. And whenever transaction value fails, you have to jump to the valuation rule that we will discuss in a while. Okay. Now 15 subsection 2 is here that we will discuss in the next lecture, inclusions to value. Now I have to discuss with you exclusions to value first of all. Okay, exclusions first of all kar lete because that is easy part. Section 15 subsection 3 talks about what it excludes. What excludes from the transaction value, और जो transaction value में से बाहर निकलेगा उसके ऊपर GST नहीं लगेगा. Technically they wanted to say, दादा जो डिस्काउंट आप दे रहे वाले हो अपने कस्टमर्स को उसके ऊपर आप GST चार्ज मत करो, ठीक है ना. नाउ डिस्काउंट विल बी ऑफ टू टाइप. नाउ डिस्काउंट विल बी ऑफ टू टाइप. तो डिस्काउंट की बात हो रही है. नाउ डिस्काउंट विल बी ऑफ टू टाइप. 15 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए डिस्काउंट, 15 सबसेक्शन 3 क्लॉज बी डिस्काउंट. 15 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए डिस्काउंट जो दिया जाता है दैट विल बी गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई. बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई. ओके. And what is the condition here? If you want to reduce the discount from the transaction value, तो condition क्या है? It should be recorded in the invoice. जो इनवॉइस अपने पार्टी को इश्यू किया उस इनवॉइस में इसका डिस्क्रिप्शन होना जरूरी है, क्योंकि आपने बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई दिया तो आपको तो तभी तो पता ही है डिस्काउंट है तो है, तो यू शुड हैव शोन इट इन इनवॉइस. तो ये कंडीशन यहाँ पे कर दी. दिस इज वेरी डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड डिस्काउंट टू बी अप्लाइड इन जीएसटी रिजिम, लेकिन है प्रोविजन तो इम्पॉसिबल नहीं है, बट प्राइमरली आपको पता होना चाहिए कि बाय डिफॉल्ट इट विल नॉट बी सब्ट्रैक्टेड आफ्टर सप्लाई. इफ यू कंप्लाई ऑल द थ्री कंडीशन, then yes, even after sales discount, after supply discount will be reduced from your taxation value. What are the conditions? There are three conditions. First, the discount cannot be haphazard, discount cannot be random, discount cannot be sudden, discount cannot be through announcement. Discount has to be as per the terms of an agreement entered into at or before the time of such supply. ये सप्लाई करने से पहले ही आपको आपके रेसिपिएंट को पता होना चाहिए कि ये कंडीशन अगर कंप्लाई हो जाती है तो आई विल बी एलिजिबल फॉर सर्टेन टाइप ऑफ डिस्काउंट. सेकंड पॉइंट, स्पेसिफिकली लिंक टू द रिलेवेंट इनवॉइसेस. जो सेकंड कंडीशन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लिंकेज इसका पॉसिबल होना चाहिए. एंड द थर्ड पॉइंट, आईटीसी हैज बीन रिवर्स्ड बाय द रेसिपिएंट. जो रेसिपिएंट है आपका उसने हायर वैल्यू पे आईटीसी लिया होगा, अब वो लोअर वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है, तो हायर से लोअर में जो गैप होगा उस गैप का जो आईटीसी होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा, वो उनको रिवर्स करना पड़ेगा. दिस इज व्हाट यू शुड नो अबाउट वैल्यूएशन मैकेनिज्म. ठीक है ना, इतना तो आपको पता होना चाहिए. एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक मोर अबाउट इंक्लूजन्स जो यहाँ पे दिखे हुए सेक्शन 15 सबसेक्शन 2. इन दिस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट आर द इंक्लूजन्स टू ट्रांजैक्शन वैल्यू. ओके, वी विल स्टार्ट एट 11:45. टेक अ 5-minute break. We'll start at 11:45.